Yes, ma'am. হ্যাঁ ম্যাম। এখন Okay, দেখা যাচ্ছে। okay, okay. So let us start. So acha, we were discussing about this topic. Okay, this is a new module. I will just go up fast through few slides. Okay, that which I've already taught yesterday. Now, the topic says that this is your introduction to irrigation engineering. We already have discussed that what do you understand by the irrigation engineering and what are the topics that we will that comes under this module. Okay, first is the irrigation and methods of irrigation. What are the different methods, how we have to apply water. Irrigation means what? It is the artificial application, right? This is not the natural process. What we are doing, we are constructing some instruments and all together using with the help of many major instruments. What we are doing, we are applying water from these sources to the field for the cultivation of the crop. Okay, so how we are applying, what are the different methods, we will learn about it. Water requirement of the crop, this is very important. As I said, this is very important. Water requirement of the crop means what, how much water should be provided to the crop for its throughout its crop period. Crop period means from sowing of the seeds till its harvesting. Okay, मतलब तुम जो भी क्रॉप्स का उसका सीड जब से तुम सो करोगे जमीन में और जब तक उसका हार्वेस्ट नहीं हो जाता है, तो थ्रू आउट दैट पीरियड वी नीड टू गिव वाटर. ओके, वी नीड टू अप्लाई वाटर टू दैट क्रॉप for its nourishment. So what are the requirements? Okay, and again we this water requirement again depends upon the soil moisture content, right? What is the moisture content, what is the available moisture content of the soil. Okay, what will be its maximum moisture content, that means how much it can absorb, how much water it can absorb or it can hold, soil can hold. Okay, we must know everything. हमको ये सब कुछ पता रहना चाहिए, तभी तो हम उतना ही क्वांटिटी का एफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हम देंगे. नहीं तो क्या होगा, तुमको पता ही नहीं है सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट क्या है और तुम मतलब पानी दे जा रहे हो तो क्या हो जाएगा. If it is already moistured, if the soil content, water moisture content is already full, सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो पानी देने का कोई फायदा है नहीं है. तो क्या हो जाएगा, इट विल बी लॉस. तुम पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो, जहां पर रिजर्व करके रखे थे वहां से लेकर आ रहे हो, राइट. अब वही पानी नॉट ओनली इन इरिगेशन, बहुत सारे में यूज होता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज होता है, राइट. इट इज काइंड ऑफ स्टोरेज ऑल्सो. तो क्या होता है कि अगर तुम वहीं से एक्सेस पानी लेकर यूज कर रहे हो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, देन व्हाट हैपन, देयर विल बी लॉसेस, राइट. तो पानी वहां पे तुम ज्यादा दोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी वो मॉइस्चर कंटेंट फुल है, पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, इट विल नाउ स्टार्ट टू स्टैग्नेंट, मतलब वो क्या बोलते हैं वहां पे जमना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, इट विल बी मार्सी लैंड, राइट. वहां पे मार्सी लैंड क्रिएट हो जाएगा, जिससे वहां पे मच्छर वच्छर जो भी है, मॉस्किटो, दे विल ले एग्स, राइट. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट सम डिजीज ऑल्सो. तो अल्टीमेटली वाटर लॉग हो जाएगा. सो that is what, that is disadvantage, right. If we don't know, if we don't consider this one before applying water, then what happens, everything will be in vain, right. Now comes design of canals. canal का मतलब कि जहां से तुम पानी लेकर आ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो पानी, कैसे करोगे, एकदम लंबा पाइप से तो कनेक्ट नहीं हो सकता है, राइट. तो या बहुत दूर पे है तुम्हारा रिजर्वर और तुम्हारा फील्ड कहाँ पे है, तो क्या कैसे होगा. आई थिंक सुमन तो वो एग्रीकल्चर कुछ काम करता रहता है, उसको पता है कि पानी कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट. So design of canals, so using that canal only we are transferring that water, right. So we have to design the cross section. Here design means what, we have to design some parameters. इकोनॉमिक मतलब वो कैनल डिजाइन शुड बी इकोनॉमिक, मतलब ज्यादा कंस्ट्रक्शन में खर्चा भी ना हो, लॉसेस जो भी होता है ड्यू टू सीपेज लॉस वो सब भी कंसिडर करना है, लाइनिंग करना है. सो एवरीथिंग कम्स अंडर दिस डिजाइन ऑफ कैनल. मतलब डेप्थ कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए कैनल का. ओके, सो इट कम्स अंडर दिस. नाउ अनदर इज वाटर लॉगिंग. जैसे हम बोले कि पानी अगर एक्सेस में दोगे तो वाटर लॉग हो जाएगा. सो वी मस्ट कंसिडर दिस ऑल्सो, इसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, अगर हुआ तो हम उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे. that we will learn under this module. Now today's topic was what, first I have discussed that irrigation, definition of irrigation, क्यों जरूरी है, what are the concern of irrigation, benefits, disadvantages and methods. Okay,
सी इरिगेशन है जैसे दिस इज द आर्टिफिशियल साइंस इंजीनियरिंग है ये, राइट? तो तुम लोग इरिगेशन सिर्फ नहीं बोले, इरिगेशन इंजीनियरिंग बोले. सो इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, राइट? सो इट इज द साइंस विच डील्स विद द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर. ठीक है, ये है उसका मेन ऑब्जेक्टिव. लेकिन इसमें सिर्फ पानी को अप्लाई करना ही तुम्हारा काम नहीं रहता है इरिगेशन में. देयर आर सेवरल सब ब्रांचेस, राइट? इरिगेशन के अंदर में भी बहुत सारा सब ब्रांचेस होगा. So we will learn everything in this irrigation engineering topic. Okay, so basically irrigation का मतलब it is the science of application of the water to the land in accordance with the crop requirement. मतलब पानी certain, देखो हर क्रॉप के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जरूरी नहीं है. जैसे कि तुम राइस के लिए जितना पानी डालोगे, ठीक है, शुगर केन के लिए उतना ही पानी देना है. इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? every crop has its own water requirement, right? क्रॉप रिक्वायरमेंट अपना अपना रहता है कि हमको इतना डेप्थ ऑफ पानी चाहिए, राइस के लिए इतना डेप्थ ऑफ पानी अप्लाई करना है, तुम्हारा शुगर कैन के लिए, पोटैटो के लिए इतना पानी, अलग अलग रहता है. ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस. मतलब एक ही क्रॉप, तुम राइस एक जगह पे यहाँ पे उगा रहे हो, क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो कोलकाता में, ठीक है, और वही राइस तुम लेकर साउथ इंडिया में जाके कल्टीवेट करो, तो ऑब्वियसली दोनों में बहुत डिफरेंसेस है. टोपोग्राफिकल डिफरेंस तो रहेगा ही, राइट? मतलब एक है तुम्हारा नॉर्थ में, एक ईस्ट में, और ईस्ट में है, और एक है तुम्हारा साउथ में. तो वहां का वेदर कंडीशन अलग है, दोनों का ही वेदर कंडीशन अलग है, ठीक है. टाइप ऑफ द सॉइल वो भी अलग होगा. सो सेम क्रॉप है, राइस, दोनों ही सेम क्रॉप है, सेम मतलब एक ही टाइप का क्रॉप है, ठीक है. लेकिन मैम, यस मैम तिरंजन ঢুকতে যাচ্ছে, আপনি অ্যাকসেপ্ট করুন. কে অ্যাকসেপ্ট তিরঞ্জন ম্যাম, অ্যাকসেপ্ট কেন করব আমি? এটা তো অটোমেটিক. ওকে, আর কেউ আছে? ওকে, সো লেট अस स्टार्ट. सी तो क्या बोले थे कि क्रॉप, मतलब क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर. ओके, वेयर एज एक ही क्रॉप अगर रहेगा फिर भी वेरी करेगा, मतलब सेम डेप्थ हमको नहीं देना है पानी का. व्हाई? बिकॉज दे आर कल्टिवेटेड इन डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जोन में है. अब डिफरेंट जोन मतलब डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, वहां का टेम्परेचर अलग रहेगा, वहां का सॉइल अलग रहेगा, नेचर ऑफ द सॉइल विल बी सेपरेट. तो नेचर ऑफ सॉइल हो जाएगा तो मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल विल ऑल्सो बी सेपरेट, राइट? सो इसीलिए हमको ये इरिगेशन का मतलब डिटेल्स में करना जरूरी है कि कितना लगेगा, मॉइस्चर कितना है सॉइल के नीचे. सिर्फ इट डजंट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप ओनली, कि ये जितना डेप्थ ऑफ वाटर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इट डजंट डिपेंड ओनली ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, राइट, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल, इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो वही सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, नॉट इन दिस लेक्चर, इन लेटर लेक्चर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. मतलब ये ओवरऑल इरिगेशन के अंदर यही सब हमको पढ़ना है. ओके, अब देखो एज आई सेड कि क्या क्या कंसर्न है, हाउ टू अप्लाई. आज का टॉपिक है ओनली ये, हाउ टू अप्लाई, पानी कैसे डालना है, कैसे हम लोग कर सकते हैं इरिगेशन, ठीक है. दूसरा है हाउ मच टू अप्लाई, मतलब कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए. अगेन एज आई सेड दिस डेप्थ डिपेंड्स ऑन द सॉइल मॉइस्चर प्लांट रिलेशनशिप, मतलब प्लांट और सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है, ठीक है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर तुम्हारा डिपेंड करता है कि ये वाला पानी कितना डालना है हमको. ओके, एंड व्हेन टू अप्लाई, मतलब तुम पानी के डेली बेसिस में डालते जाओगे, ऐसा नहीं है. तुम एक सर्टेन डेप्थ तक दोगे, जितना दिन तक वो पानी एब्जॉर्ब करते रहेगा उसी में, मतलब उतना काफी है, उतना पानी. आज सपोज हम इतना डेप्थ ऑफ वाटर हम डाले, इतना mm ऑफ वाटर अपने फील्ड में पानी अप्लाई किए हैं, ठीक है, अब वो शायद 10 दिन तक उतना काफी रहेगा. 10 दिन तक हमको और पानी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इट विल बी उसका जो फिल कैपेसिटी है वो ठीक रहेगा, उतना ही उसको जितना वो पानी चाहिए रहेगा, क्रॉप उतना डेप्थ ऑफ वाटर से वो लेता रहेगा, ठीक है. अब आफ्टर 10 डेज क्या हो जाएगा कि वो शायद मॉइस्चर उसके अंदर सूखना स्टार्ट हो जाए, अब हमको फिर से पानी देना है, राइट? इट इज नॉट लाइक दैट कि डेली देना है. सो कितने दिन के बाद देना है, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन एज आई सेड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द वाटर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और मेनली टाइप ऑफ द क्रॉप्स, राइट? इसके ऊपर तुम्हारा, एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ इरिगेशन, कि तुम किस तरीके से पानी को दे रहे हो, इसके ऊपर भी इट इज डिपेंडेंट. फ्रीक्वेंसी, कितना कितना दिन के बाद हमको पानी देते जाना है. ओके, सो वी विल लर्न दिस ऑल्सो. नाउ
ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग का इंडिया नेचुरल सोर्स इज व्हाट, इट इज रेनफॉल। अगर रेनफॉल ही नहीं रहेगा, रेनफॉल तो इट्स नॉट पेरेनियल, इट्स नॉट एवर, मतलब पूरा मंथ रहेगा, पूरा साल रहेगा। लेकिन इसलिए जिस साल पे जिस मंथ पे पानी नहीं होता है हमको आर्टिफिशियली देना पड़ता है, अदरवाइज तो रेनफॉल अगर हमेशा ही आता रहता है तो फिर क्या जरूरत है, राइट। सो सिंस इन इंडिया इट्स अ ट्रॉपिकल रीजन, सो यहाँ पे टाइमली बारिश नहीं होगा, टाइमली तुमको मॉइस्चर कंटेंट भी फुल नहीं हो रहा है, तो हमको आर्टिफिशियली अप्लाई करते रहना है। एज आई से डिफरेंट क्रॉप्स का अलग अलग क्या बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट होता है, और सेम ही टाइप का क्रॉप का भी अलग अलग रहेगा। इफ इट कहाँ पे कल्टीवेट किया इसके ऊपर डिपेंड करता है। सी वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड एज वेल एज द कल्टीवेशन मेथड। ओके, सो बेनिफिट्स हम बोले थे कि क्या क्या है। इरिगेशन में तो सिर्फ हम पानी डाल रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी डालना उतना है, राइट। अब उसका भी तो हमको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेगा। एक जगह पर फील्ड हम कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, तो उससे और क्या क्या बेनिफिट्स आ सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज व्हाट, फूड प्रोडक्शन होगा, वेरी गुड, ठीक है। ऑप्टिमम यील्ड होगा, ऑप्टिमम ग्रोथ और यील्ड, मतलब कि एक जगह से कितना क्रॉप्स हमको हार्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका ऑप्टिमम हमको चाहिए, ना कि कम ना कि ज्यादा। तो इरिगेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये, ठीक है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स व्हाट, सूखा। सूखा मीन्स व्हाट कि जहां जहां पे रेनी सीजन नहीं हो रहा है, जहां जहां पे नेचुरली नहीं आकर कर रहा है, तो वहां पे हम लोग आर्टिफिशियली पानी मतलब दे पा रहे हैं, राइट। उसकी वजह से अगर सूखा पड़ भी गया तो हमको खाने का जरूर मतलब वो नहीं होगा, डिफिकल्टी नहीं होगा, हमको क्रॉप्स मिल रहा है क्योंकि क्रॉप्स कल्टीवेट हो जा रहा है आर्टिफिशियली पानी डाल के, राइट। दूसरा है कि कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप, राइट। कैश क्रॉप मतलब कि नगद, नगद मतलब जिससे तुम लोग जैसे तंबाकू, तंबाकू टोबैको, ओके, उसको बेच के तुमको पैसा मिलेगा, मतलब ऐसा टाइप का है, ठीक है। सो तुम इजीली उसको बेच के पैसा कलेक्ट कर सकते हो। दो टाइप ऑफ क्रॉप्स को बोलते हैं कैश क्रॉप्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड हर्ब, मिक्स्ड हर्ब हम बोले थे, सॉरी मिक्स्ड क्रॉप हम बोले थे कि क्या, एक फील्ड है, सपोज तुम्हारा अपना एक जगह है, ठीक है, वहां पे तुमने अगर बारिश हमेशा मतलब अवेलेबल रहता, नेचुरल सोर्स अगर हमेशा रहता, तो क्या होता है, अच्छा हम इस मंथ से इस मंथ तक सिर्फ क्या बोलते हैं राइस, सॉरी इस मंथ से इस मंथ तक हम एक क्रॉप कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट रिमेनिंग 6 मंथ हम दूसरा क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे। मतलब कि एक फील्ड पे यू आर कल्टीवेटिंग ओनली वन टाइप ऑफ द क्रॉप एट अ टाइम, उसको बोलते हैं, मतलब उसको मिक्स क्रॉप नहीं बोलते हैं, मतलब कि एक जगह पर तुम एक ही टाइम में एक ही क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है अगर ये थ्रू आउट द सीजन तुम्हारा, थ्रू आउट द ईयर तुम्हारा बारिश होगा, तभी इट इज पॉसिबल, ओके। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम बोले थे हम लोग का इंडिया में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो अगर जहां जहां पे तुम लोग का इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, वहां पे हम लोग पानी डालने का जो भी है इरिगेशन, तुम तो मैनुअली तो कितना करोगे, मैनुअली तो नहीं कर पाओगे, यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू क्या बोलते हैं वहां पे तो करना पड़ेगा, राइट, मतलब मशीन्स वशीन्स डालना पड़ेगा, तो अकेले कितना करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या करना है कि हमको इरिगेशन सिस्टम फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर, और बोले थे कि थ्रू आउट द ईयर तो बारिश नहीं होगा कि हम एक टाइम में एक क्रॉप किया, फिर दूसरे टाइम में नेक्स्ट 6 मंथ में हम दूसरा क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो रहा। शायद पहले 6 मंथ में बारिश हो रहा है, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ में तो सूखा पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, राइट। यू डोंट हैव एनी इरिगेशन फैसिलिटीज कि उसको आर्टिफिशियली पानी दे दो, तो क्या करोगे तुम एक ही टाइम में, ठीक है, 3-4 ठो क्रॉप डाल दोगे वहीं पर, एक ही फील्ड में 3-4 ठो क्रॉप्स को एक साथ कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दोगे, चालू कर दोगे, दैट इज मिक्स्ड क्रॉप। और ये मिक्स्ड क्रॉप का, ম্যাম हाँ, ম্যাম हम्म, ম্যাম কিছু জন অ্যাড হতে চাইছে। अच्छा अच्छा, अरे टाइम में কেন হয় না, হয়েছে? উফ, अच्छा, तरीका। तो देखो
तो क्या हो रहा है कि मिक्स्ड क्रॉप, ओके अंडरस्टूड आई थिंक। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब क्या है कि एक फील्ड में तुम एक ही साथ 3-4 क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, एनीवन? ये हम कल बोले थे, उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है अगर हम ऐसा एक साथ सबको मतलब वहां पे करेंगे तो? एनीवन? मैम वही डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट डेप्थ ऑफ वाटर चाहे तो সেই জন্য एग्जैक्टली, অসুবিধা वेरी হবে। गुड। हाँ वो भी है, ठीक है। एक क्रॉप्स को लगेगा 10 mm का वाटर और दूसरा क्रॉप को लगेगा क्या बोलते हैं सिर्फ 5 mm का वाटर, ठीक है, 5 mm डेप्थ का वाटर। तो तुम 10 mm से भी ज्यादा अगर दे दोगे पानी, ठीक है, मतलब 10 mm ही दे दिया मैक्सिमम, तो क्या होगा दूसरे के लिए इट विल बी एक्सेस। और एक्सेस पानी भी सही नहीं है, शायद ये सबको पता है, जो कल्टीवेट करते हैं उन लोगों को तो पता रहना चाहिए कि एक्सेस पानी इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द कल्टीवेशन, राइट। तो हमको उसका एकदम जितना फील्ड कैपेसिटी है उतना ही देना है, उससे अगर एक्सेस भी दे दोगे तो वो भी कोई तुम्हारा हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए वहां पे तो एक प्रॉब्लम रहेगा। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखो एक क्रॉप के लिए they are using, not only they are using water, they are using minerals from the soils, right। वो पूरा रूट से सॉइल से मिनरल्स भी ले रहा है, राइट। तो एक प्लांट पूरा अपना जितना मिनरल्स है वो ले लिया, ठीक है, लेकिन दूसरा क्रॉप को भी वही मिनरल्स चाहिए रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहां पे डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तुम एक साथ बहुत सारा कर दिया, इसने अपना मिनरल ले लिया, इसने अपना मिनरल ले लिया, बाद में क्या बचेगा वो सॉइल में कुछ मिनरल्स का डेफिशिएंसी हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करना मतलब गलत हो जाएगा। अगर हम लोग इरिगेशन रख देंगे तो 6 मंथ में सिर्फ एक क्रॉप लगा, बाकी 6 मंथ में अगर बारिश हुआ भी नहीं तो हम लोग का इरिगेशन है, राइट, तो हम इजीली पानी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमको वहां पे जबरदस्ती एक ही साथ मिक्स क्रॉप करने का जरूरत नहीं है। इट इज एलिमिनेटेड, ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तुम लोग का मैक्सिमम, हम लोग का तो पूरा क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं हम लोग इंडिया को, राइट। तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, इनलैंड नेविगेशन भी होगा, मतलब कि जो कैनल डिजाइन कर रहे हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं उसमें से पानी तो ट्रांसफर नहीं होगा, दैट कैन बी यूज्ड फॉर योर नेविगेशन पर्पज आल्सो, ओके। इंप्रूवमेंट इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज, हाँ अगर तुम आर्टिफिशियली पानी दे रहे हो तो क्या हो रहा है नीचे भी कुछ पानी जा रहा है, राइट। नीचे भी जितना पानी उसको चाहिए रहेगा वो ले लेगा, प्लांट ले लेगा, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा इट विल गो बिलो द वाटर, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, तो आके वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जा रहा है, सो वो इम्प्रूवमेंट भी होगा, ओके। ये भी हो रहा है एडवांटेज। तो तुम्हारा जो नीचे का पानी जाके जम रहा है अल्टीमेटली वो पानी भी हम लोग ही यूज करेंगे ट्यूबवेल से, ठीक है। ये क्या हो रहा है रिचार्ज हो जा रहा है पानी भी नीचे। अगर हम सिर्फ निकालते ही रहेंगे पानी ट्यूबवेल से तो क्या हो जाएगा वो सूख जाएगा, नीचे भी सोर्सेस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम फील्ड के लिए पानी दे रहे तो जितना पानी क्रॉप के लिए लगेगा और रिमेनिंग इट विल फॉल बिलो द वाटर, परकुलेट कर जाएगा ग्राउंड वाटर में जाके वो रिचार्ज हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी हेल्प कर रहा है। और ओवरऑल जनरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो होगा ही, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट, इसमें मैक्सिमम हम लोग को सब जगह पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर ही इकोनॉमी भी डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? देखो डिसएडवांटेज हम बोले थे, अगर तुम लोग को कुछ क्रॉप रिक्वायरमेंट यू हैव नॉट मेजर्ड, यू हैव नॉट कंसीडर्ड द फील्ड कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब उसका मॉइस्चर कंटेंट तुम कुछ कंसीडर नहीं किए, तो अगर क्या करोगे एक्सेस वाटर दे दिया और फ्रिक्वेंटली पानी दे रहे हो तो वहां पे थोड़ा जितना वो लेगा, ठीक है, उसका सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जितना भर्ती होना था भर्ती हो गया, जितना ग्राउंड वाटर में जाना था वो भी हो गया। अब बचेगा रिमेनिंग पानी क्या हो जाएगा रन ऑफ जो बोले थे हम लोग, राइट। अब वो पानी इट विल स्टार्ट एज अ रन ऑफ मतलब तो फील्ड तो पूरा फ्लैट रहता है, स्लोप नहीं रहता, राइट, फ्लैट रहता है, तो क्या हो जाएगा वहां पे पानी जमना स्टार्ट करेगा, सो वाटर लॉग हो जाएगा, राइट। दूसरा है कि इरिगेशन के लिए हमको कैनल डिजाइन करना है, कैनल चाहिए, राइट। तो कैनल भी अगर हम लोग अच्छे से लाइनिंग नहीं देंगे, अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे तो ड्यू टू सीपेज लॉस बोलो, पर्कुलेशन की वजह से जो सीप होके साइड से जो सीप होके आसपास का जो भी इलाका है उसको वाटर लॉक कर देगा, ठीक है। अब वाटर लॉग होगा तो क्या हो जाएगा वहां पे पोल्यूशन होगा तो क्या होगा वहां पे मस्क्यूटो ये सब दे विल स्टार्ट टू ले एग्स, उसकी वजह से डिजीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो और वाटर लॉस तो होगा ही, जैसे कि कैनल से तुम वहां से 10 क्यूमेक्स ऑफ वाटर 100 क्यूमेक्स ऑफ वाटर तुम लेकर आए, ठीक है,
रिजर्वर से 100 क्यूमेक्स ऑफ वाटर लेकर आ रहे हो, अब लॉस रास्ते पर ही पूरा आधा 50% ही लॉस हो गया, तो फील्ड में तुमको चाहिए था 100 क्यूमेक्स, लेकिन फील्ड में पहुंचते पहुंचते क्या हो जा रहा है, 50 क्यूमेक्स हो जा रहा है। वाई? बिकॉज तुम लोग का कैनल इरिगेशन में जो भी है वो हम लोग अच्छे से डिजाइन नहीं किए, सीपेज लॉस बोलो, ये सब लॉस बोलो, उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, मतलब 50% रास्ते पर ही खत्म होते आ रहा है, ठीक है। सो ये भी डिसएडवांटेज है। नाउ कम्स आज का जो हम बोले थे हाउ टू अप्लाई, ओके। तो मेनली हम लोग का इरिगेशन है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन आर देयर आर मेनली 3 टाइप्स, यहाँ पे 2 हम लिखे 3 होता है, ठीक है। एक है कि सरफेस इरिगेशन है, दूसरा है सब सरफेस, ठीक है, और तीसरा एक है स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कि सरफेस के ऊपर से हम लोग पानी डालेंगे, ठीक है। एक है सरफेस में हम पानी भिजा देंगे, मतलब फील्ड को पूरा सरफेस में पानी दे देंगे, ठीक है, मतलब ऊपर से पानी डाल के फील्ड को भिजा देंगे और वही वो सींचता रहेगा, पानी परकोलेट इनफिल्ट्रेट होता रहेगा। सब सरफेस क्या है, हम नीचे जमीन के नीचे, मतलब फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रूट जोन, जहां पे तुम्हारा रूट्स रहता है उसके मतलब उसके अंदर से हम पानी को जब देंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सब सरफेस इरिगेशन, वैसा अगर अप्लाई करेंगे। और स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन जिसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसको बोलते हैं, दैट इज स्प्रिंकलर तुम लोग देखे होंगे, फाउंटेन जैसा टाइप का होता है। स्प्रिंकलर देखे हो सबने, स्प्रिंकलर कैसा होता है, स्प्रिंकलर स्प्रिंकल किरकम है देखे छो। स्प्रिंकलर मतलब जो फाउंटेन टाइप का होता है ना, एक नोजल होता है, नोजल से पूरा फव्वारा टाइप का पानी निकल के घूमता है, फिर घूमने से क्या हो रहा है, आसपास का जितना भी गार्डन, एग्जैक्टली यस, जो कॉलेज में है वैसा टाइप का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट सरफेस, दैट इज नॉट सब सरफेस, उसको बोलते हैं स्प्रिंकलर, ठीक है, ऊपर से छिड़क दे रहे हैं हम लोग। अब सब सरफेस में 2 टाइप का होता है मेथड, ठीक है। एक है कि फ्लो, मतलब तुम पानी डाल दोगे फील्ड में, वो ड्यू टू स्लोप थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, क्योंकि पानी को फ्लो करना है, जमीन में फ्लो करना है, मतलब पूरा खेती में फ्लो करना है, राइट। तो एक है कि फ्लो, और फ्लो का मतलब क्या है, ये तो है वाटर डायरेक्टली विथ द सरफेस, फ्लो है वाटर फ्लोज अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वैसा तुम पानी अप्लाई कर दे, अब वो अपने आप फ्लो करते करते जाएगा। दूसरा है कि हम लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट मतलब क्या है कि हम पंप से पानी को लेकर वहां पे डाल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लिफ्ट करना है। एक है कि पूरा पानी छोड़ दिया वो फ्लो हो गया, एक है हम लिफ्ट करके, जैसे कुएं से हो या वेल से हो या पॉन्ड से हो, हम उठा के पानी को डाल रहे हैं वहां पे लिफ्ट में, एग्जांपल है पंप यूज करके, ठीक है। दूसरा है अब फ्लो के अंदर एक होता है कि तुम कैसे उसको भिगाओगे, ठीक है। पेरिनियल का मतलब है कि हम कंटिन्यूअस उसको भिगाते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, इट विल मतलब पूरा ईयर ये भीगता रहेगा, वैसा टाइप का कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई देते रहेंगे, ठीक है। फ्लड का मतलब क्या है, हम मतलब पूरा एक साथ पानी डाल के छोड़ दिया, फ्लड कर दिया, पूरा फ्लड की तरह वहां पे छोड़ दिया, अब वो 10 दिन तक चुपचाप बैठेंगे हम लोग, कुछ डालेंगे नहीं, 10 दिन तक वो अपना ले लेगा वहीं से, दैट इज कॉल्ड फ्लड, ओके। तो इसको ही बोलते हैं, सो दिस आर द डिफरेंट बेसिक टाइप्स, अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है फ्लड टाइप फ्लो के अंदर भी बहुत सारा सब टाइप का रहता है, वही हम आज डिस्कस करेंगे। सी अब सब सरफेस क्या है, ये तो सब हम बोले थे सरफेस में, सब सरफेस है तुम्हारा कि विच इज डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट जोन, हम रूट जोन जमीन के नीचे से हम डालेंगे, राइट। सब सरफेस इरिगेशन एक होता है कि नेचुरली होता है और दूसरा होता है आर्टिफिशियली, मेनली तो यहाँ पे इरिगेशन आर्टिफिशियली आता है, नेचुरल के मतलब जो सीपेज होके चला आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू लीकेज एंड सीपेज फ्रॉम द कैनल्स एंड ऑल, उससे हो रहा है, मतलब क्या है, कैनल है, ठीक है, मतलब कि सॉरी जैसे ये तुम्हारा कैनल डिजाइन हुआ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा पानी आर्टिफिशियली कैरी कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से सीपेज हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ से सीपेज होने के और यहाँ पे क्या है, इसके अगल बगल में तुम्हारा क्रॉप्स है, राइट, यहाँ पे तुम्हारा फील्ड है, तो इसके अगल बगल में फील्ड है, तो क्या हो रहा है, ड्यू टू सीपेज, ये सीपेज कहाँ से हो रहा है, ऊपर से तो नहीं हो रहा है, नीचे से हो रहा है, तो नीचे से तुम्हारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो तुम्हारा रूट जोन है, तो जाके ये रूट में पानी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सब सरफेस। अगेन दिस इज डिसएडवांटेज, ठीक है, अगर ये ज्यादा सीपेज हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, वहां पे
स्टैंड स्टिल होना, मतलब क्या बोलते हैं, वाटर लॉग हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और आर्टिफिशियली मतलब है कि हम लोग कैसे करेंगे, अगर तुम्हारा ये सपोज दिस इज द प्लांट, ओके, ऐसा अगर प्लांट है तो इसका रूट जोन नीचे अगर है तो ऐसे ऐसे रूट जोन अगर है तो हम नीचे से हम पाइप फिट कर देंगे, ठीक है, परफोरेटेड पाइप बोलेंगे, मतलब उसमें कुछ होल्स रहेगा, ठीक है, परफोरेटेड पाइप्स होगा। अब वहां से ये पाइप से पानी जा रहा है और ये इस होल से तुम्हारा पानी निकल रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, या ये तुम्हारा ड्रिप ड्रिप भी बोलते हैं इसको, ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं, ओके, हम लोग दिखाएंगे क्या है ड्रिप। तो ऐसा भी होता है, मतलब रूट के आसपास में, ये नीचे की तरफ है, ओके, सॉइल के नीचे है, या ऐसा भी हो सकता है। सो अब आते हैं, अच्छा आछो तो তোমরা, हेलो हेलो একজন রেসপন্স করো। হ্যাঁ আছি ম্যাম। अच्छा देखो, दिस इज द मेथड ऑफ इरिगेशन, ये हम वो जो ब्रॉडली हम बोले थे, ऊपर ऊपर से बोले थे, ये है ब्रॉड वाला। अब हम और डिटेल्स में जाएंगे। देखो, एक बोले थे सरफेस, सब सरफेस, स्प्रिंकलर, ओके, यहाँ पे स्प्रिंकलर हो गया, जी हो गया है। दूसरा क्या है, सरफेस में है तुम्हारा, सरफेस में है फ्लडिंग टाइप, फॉरो मेथड एंड कंटूर फार्मिंग, ठीक है। फ्लडिंग में आता है तुम्हारा वाइल्ड फ्लडिंग, कंट्रोल फ्लडिंग। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब है कि कोई कंट्रोल नहीं है, तुम पानी डाल दिया अब वैसे फ्लो होता होता जाएगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल्ड में क्या होता है, कंट्रोल फ्लडिंग में तुम पानी डालोगे लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे, मतलब कितना पानी तुम डालोगे वो तुम्हारे अंदर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। मतलब कौन सा फील्ड में कितना पानी जा सकता है वो तुम कंट्रोल कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, वी विल शो। वाइल्ड में क्या है कि तुम पूरा छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, वो पूरा मतलब डूब गया, वैसा टाइप का। जैसे तुम लोग का जनरली होता है जो पैडी, मतलब राइस जहाँ पे हम लोग करते हैं, देखे जो कैसा देखा है ना, कैसा होता है, पूरा फ्लड रहता है वहां पे, तुम वो कल्टीवेट कर रहे, क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हो, राइस, पैडी, इन सबको, ठीक है। अब फॉरो मेथड क्या है हम दिखाएंगे, फॉरो क्या है, और कंटूर भी क्या है वो भी बोलेंगे। जनरली कंटूर होता है तुम लोग का हिली एरियाज में, ठीक है, ये जहाँ पे स्लोप होता है, हाई स्लोप, स्टीपर स्लोप जहाँ पे होता है ये सब। और ये सब तुम्हारा जनरली होता है कहाँ पे, मतलब जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरियाज में ये सब होता है। अब देखो कंट्रोल्ड में इतना सारा है, फ्री फ्लडिंग है, कंट्रोल लैटरल है, कंटूर लैटरल है, बॉर्डर स्ट्राइप, चेक्स है, बेसिन फ्लडिंग, जिगजैग मेथड, ओके। सो दीज आर द ओवरऑल टोटल इन डिटेल्स मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाउ अब इसमें से ये सब थोड़ा याद रखना है हमको, फॉर योर गेट पर्पज, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो ये सब मेथड हमको याद रखना। देखो, फ्री फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, क्या है ये सब, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। देखो, फ्री फ्लडिंग क्या होता है, दिस इज द मेन कैनल, डिच या मेन कैनल जिसको बोलते हैं, मेन सप्लाई कैनल, ठीक है। यहाँ से पूरा पानी तुम्हारा आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे तुम्हारा रिजर्वर है, रिजर्वर से हम लोग कैनल से अब ये वाला इसमें पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है। रिजर्वर यहाँ हुआ, कैनल एक हो गया, कैनल से लेकर आ रहा है पानी, अब यहाँ पे तुम डाल रहे हो, ठीक है। वो पानी आ रहा है कैनल में, ये आ रहा है पानी। अब क्या करोगे, कैनल के इसके मतलब इसके बगल में तुम ये यहाँ पे इस तरफ है तुम्हारा फील्ड, जैसे ये वाला देखो, दिस इज फील्ड, ठीक है। अब यहाँ से तुम एक चैनल ड्रॉ कर दोगे, चैनल बना दोगे, जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी डिच या सब्सिडियरी चैनल, चैनल ड्रॉ कर दोगे। अब यहाँ से तुम पानी छोड़ दोगे, देखो यहाँ पे तो चैनल है, ये फ्लो होके आ रहा है। अब यहाँ पे अगेन इट शुड बी स्लोप, थोड़ा सा स्लोप होना चाहिए जिससे कि ये फ्लो हो जाए, फ्लो होगा। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक गैप कर दोगे, ठीक है, इससे ये है फील्ड, यहाँ बीच में तुम्हारा क्रॉप्स रहेगा, ठीक है। अब पानी वैसे तुम डाल रहे हो, जिसको बोलते हैं फ्री फ्लडिंग, पूरा फ्लड कर दे रहे हो, ठीक है। सो फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट कंट्रोल्ड, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, तुम जस्ट छोड़ दिया पानी, वैसे ही है। मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, पानी अब जैसे अपना अपना फ्लो हिसाब में जहां जाना है वैसा कर दिया तुम, ठीक है। और क्या कर दिया है कि सुटेबल फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे तुम लोग का होगा तुम्हारा राइस, पैडी, इन सब के लिए। नॉट सुटेबल व्हेन स्ट्रीम डेप्थ इज वेरी लार्ज, ऑब्वियसली ज्यादा डेप्थ अगर होगा तो क्या हो जाएगा, वो नीचे ही पानी चला जाएगा, ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। सो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो क्या है, ये तो तुम ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो कर रहा है, अब कितना पानी जाके अप्लाई होगा, पर्टिकुलरली उस रीजन पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंडेंट नहीं है हम लोग के ऊपर, लेकिन ये तुम छोड़ दिए अब, राइट। सो एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑब्वियसली घट जाएगा, एंड इट इज सुटेबल फॉर इररेगुलर टोपोग्राफी। देखो
सी इट इज सुटेबल फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी, मतलब कि उबड़ खाबड़ में तुम ये अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्यों? बिकॉज वी आर फ्लडिंग, राइट। अगर फ्लड नहीं होता, कुछ दूसरा होता, तो हमको पूरा स्मूथ मतलब प्लेन टोपोग्राफी होना चाहिए और स्लाइटली स्लोप कंडीशन में होना चाहिए। तो दिस इज योर फील्ड फ्री फ्लडिंग। अब दूसरा आता है कि हम लोग कंट्रोल करेंगे। अब दिस इज अनकंट्रोल्ड, ओके। अब दूसरा है कि वी विल कंट्रोल आवर फ्लो। अब कंट्रोल करोगे कैसे? उसके लिए तुमको क्या चाहिए? वी आर क्रिएटिंग सम क्या बोलते हैं, स्ट्राइप्स। कुछ इलाका हम स्ट्राइप्स इलाका हम बना रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग फील्ड में सराउंड कर देंगे कुछ थोड़ा, उसको इससे क्या बोलते हैं, लो लेवीज या बूंद, बूंद बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है थोड़ा उठा हुआ, जमीन थोड़ा उठा हुआ है, दिस वन, ओके। आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू द, मतलब तुम लोग विलेज एरिया में गए हो ना, खेती में जाके देखना है, ठीक है। देखोगे तो क्या दिखेगा तुमको, अलग अलग ऐसे ऐसे स्ट्राइप करके फील्ड को मतलब उसके मतलब क्या बोलते हैं, आसपास में उसके सराउंडिंग में हम माटी का कुछ उठा के रख दिया है, राइट। माटी को थोड़ा रेज करके रख दिया है, उसको बोलते हैं लेवीज या बुन्स, ठीक है। BUND और लेवीज बोलते हैं। एक्चुअली ये क्यों करते हैं? सो दैट वाटर अगर इसके अंदर गया तो तुम्हारा वाटर इसके बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब उसी में रह जाएगा, उसी फील्ड में जितना भी स्ट्राइप है उसी के अंदर वाटर रहेगा। सो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब क्या है कि तुम यहाँ पे अगर बंद कर दोगे ये रास्ता तो यहाँ पे घुसेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी तुम अगर बंद कर दोगे तो तुम अगर खोल दोगे तो ये घुसेगा, घुसने के बाद ये अब नीचे की तरफ और नहीं जाएगा, राइट, पीछे की तरफ और नहीं जाएगा। तो जितना इसका एरिया है उतने में ये कन्फाइंड होके रह गया है। सो इट इज नाउ कंट्रोल्ड, ठीक है। अगेन द लेंथ यहाँ पे बोल दिया है, इट शुड बी 100 to 400 मीटर एंड विड्थ शुड बी योर 10 to 20 मीटर। ये थोड़ा MCQs में आता है, ये याद रखना है, ओके। तुम्हारा बॉर्डर फ्लडिंग, बॉर्डर कर दिया है, राइट। सो बॉर्डर फ्लडिंग में क्या आ रहा है, इट इज 10 to 20 मीटर वाइड एंड 100 to 400 मीटर इन लेंथ, ओके। अच्छा, इसमें और एक प्रॉब्लम आ सकता है फ्रॉम दिस वन, मतलब कभी कभी आया है, ऐसा नहीं है कि गेट में आ सकता है कि देखो तुमको लिखा है, दे विल आस्क यू व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया। मतलब कि यहाँ पे जो एरिया है वो पूरा फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब कितना टाइम के लिए इसको तुम ओपन कर दोगे, फिर उसके बाद तुम बंद कर दोगे, राइट। तो ये है तुम्हारा दैट इक्वेशन, ओके। सो सी y is what, depth of the water flowing over the बॉर्डर स्ट्राइप, मतलब कि तुम कितना डेप्थ ऑफ वाटर वहां पे अप्लाई करो। यहाँ पे हम लोग मेनली वी आर, जब भी हम लोग पानी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, प्लीज रिमेंबर दैट वी हैव टू कंसिडर द डेप्थ ऑफ द वाटर, ओके। तुम लोग को डेप्थ ऑफ वाटर ही पूछा जाएगा, वॉल्यूम भी पूछा जा सकता है, तुमको एरिया भी पता है, तो वी कैन इजीली गेट द डेप्थ, ओके। सो यहाँ पे कितना एरिया ये कवर करेगा और कितना डेप्थ से ये डेप्थ ऑफ वाटर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये अगर तुम लोग को दिया रहेगा, ठीक है। See, if you know the depth of water that is applied, ठीक है, एरिया कितना, वो स्ट्राइप का एरिया कितना है अगर वो पता रहेगा, डिस्चार्ज मतलब ये जो जिस फ्लो में आ रहा है, जिस रेट में आ रहा है, कितना क्यूमेक्स ऑफ वाटर पर सेकेंड में आ रहा है, वो अगर दिया रहेगा। सो एंड और एज वेल एज देखो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन एक टर्म आ रहा है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली पानी डालोगे तो कुछ तो इन्फिल्ट्रेट होगा नीचे, राइट। उसको माइनस करके ही तुम्हारा एक्स्ट्रा डेप्थ हमको डालना है। सपोज तुम 10 mm का वाटर डाले हो, उसमें से 2 mm ऑलरेडी नीचे चला गया, ठीक है, मतलब इन्फिल्ट्रेट हो गया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना देना है, और 2 एक्स्ट्रा देना है, 2 mm, जिससे कि तुम्हारा 10 mm का ही डेप्थ हम लोग जिसका रिक्वायरमेंट है, मतलब उसका जितना वो क्रॉप के लिए हमको 10 mm डेप्थ वाटर देना चाहिए, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्रॉप। लेकिन देने से क्या हो रहा है, कुछ जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन लॉस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको माइनस करके देखो, यहाँ पे माइनस टर्म है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक। सो ये भी हमको जानना है। सो इफ यू ऑल दिस वैल्यूज आर गिवन टू यू एंड दे विल आस्क यू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन एरिया। ये एरिया हमको पता है तो पूछ रहा है कि इतना एरिया कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो, ओके। डिराइवेशन हम दिखाए नहीं, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्रॉम बॉर्डर फ्लडिंग एंड दिस इज दैट एग्जांपल। देखो ये वाला देखो थोड़ा सा उठा हुआ है, दीज आर नोन एज द लेवीज, LEVEES, और बुन्स, बंस या बुन्स बोलते हो शायद,
ऐसे देखे हो ना सब लोग फील्ड में, इसका लेंथ है 100 to 200 सॉरी 400 एंड विड्थ इज 10 to 20 मीटर. ओके क्लियर आई थिंक दिस वन. हेलो हेलो यस मैम. ओके सो इसको देखो बॉर्डर कर दिया है. पिछले वाले में क्या था, फर्स्ट में तुम्हारा कोई बॉर्डर ही नहीं है, यहाँ पे चैनल है, पानी डाल दिया, अब ऐसे ऐसे करके जा रहा है अपना अपना जहाँ पे जाना है वो लोग जा रहे हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा बॉर्डर कर दिया है, मतलब पानी जाएगा अब इसी में रखेगा, उस तरफ फ्लो हो नहीं जाएगा, ठीक है. मतलब वी आर कंट्रोलिंग. तुम ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें पानी डाला इसमें नहीं डाला, ठीक है. वेयर इसमें डाल दिया पानी अब इसमें नहीं डाला, सूखा है यहाँ पे, वैसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का पानी तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बॉर्डर कर दिया है. सो दिस इज कंट्रोल्ड. ओके दैट्स व्हाई. लेकिन पहले वाले में तो कोई कंट्रोल ही नहीं है. अब आते हैं देखो चेक फ्लडिंग. चेक फ्लडिंग का मतलब क्या है कि ऐसे पूरा अलग अलग हम पूरा सेक्शन को अलग अलग कर दिया है. so, चेक चेक में कर दिया है, ठीक है. पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे चेक नहीं था, सिर्फ ऐसे पैरेलली चेक था. अब इसमें क्या है, पूरा चेक, जैसे ये वाला छोटा छोटा एरिया करके, ठीक है. द कन्फाइंड एरिया, इसका कन्फाइंड जो भी एरिया हम लोग निकाल रहे हैं इसका, इट शुड लाइज बिटवीन 0.2 to 0.8 हेक्टर. 1 हेक्टर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर स्क्वायर. हेक्टर ये एरिया का यूनिट है. ओके अब 1 हेक्टर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर स्क्वायर था, एनीवन? 4 मीटर स्क्वायर. वेरी गुड वेरी गुड. 10 to the power 4 था, ठीक है. वैसे भी तुम लोग निकाल सकते हो. सो इसका ऐसा देते हैं. ये वाला जो दिखाई दे रहा है देखो, यहाँ पे चैनल है, अलग अलग करके यहाँ पे देखो खोल दिया, ये वाला बंद को तोड़ दिया, खोल दिया. सो पानी अब घुस रहा है यहाँ पे. अगेन दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, क्योंकि तुमको कंट्रोल कर पा रहे हो, राइट, फ्लो को. अब आते हैं, देखो इस तरफ में क्या है, ये वाला मेन चैनल यहाँ पे जो जहां से पानी आ रहा है, इस तरफ में उस तरफ है, वहां से तुम्हारा जो ये वाला आ रहा है, ठीक है, लैटरल जो भी है दिस वन. अब यहाँ से बगल बगल में ये जो चैनल करके डाल दिया है पानी. ओके नेक्स्ट इज योर बेसिन फ्लडिंग. बेसिन का मतलब क्या है कि एक सर्टेन एरिया है, सिर्फ वहीं पर ही पानी जाएगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड बेसिन. जैसे हम लोग कैचमेंट एरिया बोले थे, एक मतलब सॉसर टाइप का होगा, सॉसर टाइप का एरिया है, ठीक है, बॉल टाइप का एरिया है, वहां पे जाके पानी जमेगा, राइट. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. बेसिन फ्लडिंग का मतलब कैसे हम फ्लड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक बेसिन बनाएंगे, उसमें फ्लड कर देंगे पानी को. सो दिस इज लाइक व्हाट, लाइक दिस. देखो ये चैनल है, ठीक है, सप्लाई चैनल है. दिस इज फील्ड चैनल, मतलब फील्ड में जो जाएगा चैनल, और ये जो सप्लाई पानी कहाँ से आ रहा है वो सप्लाई चैनल. अब देखो पानी जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही ट्री में जाएगा. और वहां पे क्या था, वहां पे पूरा एक साथ बहुत सारा क्रॉप्स होगा, राइट, बहुत सारा क्रॉप्स होगा, सबको पानी मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली सिंगल ट्री एट अ टाइम पानी मतलब मिलेगा, उसको पानी हम डालेंगे. जैसे कि ये वाला देखो, ठीक है, ये जो मेन चैनल हुआ, फील्ड चैनल हुआ, ऐसे साइड में ट्रीज हो गया, ठीक है. एंड दिस टाइप, इसी को बोलते, देखो दिस इज एक्टिंग लाइक अ बेसिन, ठीक है. सो ये वाला स्पेशल टाइप, ये जो चेक फॉर्म देखो ऐसा ही तो है, वो भी वैसा ही है. यहाँ पे चेक ट्रायंगुलर टाइप का था, अब यहाँ पे अलग अलग करके बेसिन टाइप का कर दिया. सो दिस इज व्हाट, स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग. ओके और यहाँ पे जनरली कैसे टाइप का प्लांट्स को हम लोग कर सकते हैं, ऑर्किड फार्मिंग जो होता है, ठीक है. ऑर्किड का बोलो, ये जो सुपारी घास लग रहा है हमको तो ये, ठीक है, तो सुपारी ट्री लग रहा है, तो वैसे टाइप का डिपेंड करता है. मतलब फ्लड, मतलब यहाँ पे राइस हम लोग पैडी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है. पैडी के लिए हमको फ्लड टाइप का चाहिए, तो वैसे टाइप के क्रॉप्स के लिए ये मेथड हम यूज करेंगे. एज आई सेड, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है. अब डिफरेंट मेथड्स का अपना अपना एफिशिएंसी है, फैक्टर मतलब कितना पानी दे सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा प्लांट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, किस टाइप के में किस टाइप का मेथड यूज होगा. ओके नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉरो इरिगेशन. ओके ये अभी तक जितना भी हम किए हैं, दैट वाज योर सरफेस इरिगेशन व्हिच कम्स अंडर फ्लडिंग, राइट. अब ये वाला है फॉरो इरिगेशन. फॉरो का मतलब क्या है बोलो तो, रिज एंड फॉरो हम बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है, रिजेस एंड फॉरोज हम बोलते हैं. एनीवन? सपोज ऐसा ऐसा अगर गया, किसको रिज बोलेंगे, किसको फॉरो बोलेंगे, बोलो. इसको क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बोलो. इसमें कौन सा फॉरो है, 1 ना 2, विच वन? मैम 1 फॉरो. यस, जो ये है नीचे की तरफ, राइट.
सो दिस आर योर फॉरो, ठीक है। अब ये फॉरो में क्या जाएगा, ये फॉरो में पानी जाएगा, मतलब इसमें पानी डालना है, ठीक है। और जो रिजेस है मतलब जो टॉप क्रेस्ट है उसमें तुम्हारा प्लांट रहेगा, ठीक है। मतलब प्लांट का ये रहा रूट जोन, दिस इज द रूट जोन, ऐसे दिस इज द रूट जोन, ठीक है। अब ये वाला देखो, इट इज मतलब ये सरफेस भी नहीं है सब सरफेस भी नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। मतलब इसका रूट जोन में भी पानी अप्लाई कर रहे हैं, इससे तो यहाँ पे पानी अप्लाई होगा ना, ये देखो यहाँ पे पानी है, ये रूट जोन में डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये सब सरफेस टाइप का भी कर रहा है। और ये पानी सरफेस में क्या होता है, सरफेस में तो पानी ऊपर रहता है, ऐसे ऐसे ऊपर देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये तो हम लोग सब सरफेस एरिया में दे रहे हैं। अब ये सब सरफेस भी है और सब सरफेस भी है, दोनों टाइप का है, तो इसलिए इसको हम अलग कर दिया। सो फॉरो इरिगेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा फॉरो है, ये जो फॉरो काट दिया है और बीच में जो भी रीजन है उस रीज में तुम्हारा क्या है, क्रॉप्स हम डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से कैनल देखो पानी जा रहा है, पानी कैनल मेन चैनल है, यहाँ से फॉरोज में जाएगा, अपना अपना फॉरोज में पानी जाएगा। अब इसका जो लेंथ कितना दूर तक इसका है, लेंथ इज 400 मीटर, ठीक है। और ये जो डेप्थ कितना काटना है, ये जो डेप्थ है, दिस डेप्थ मस्ट बी लाइंग बिटवीन 8 to 30 सेंटीमीटर में होता, वेरी करता है, ओके। अब देखो फ्लड में क्या है, 100% फील्ड इज बीइंग फ्लडेड। फ्लड में क्या हो रहा है, फ्लड बोलो जितना भी टाइप का फ्लड में क्या हो रहा है, मैक्सिमम एरिया ही हम लोग पानी दे रहे हैं, मैक्सिमम एरिया में ही हम पानी डाल रहे हैं, राइट। सब में देखो मैक्सिमम एरिया में तो पानी डाल रहे हैं, राइट। देखो यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पूरा पानी पानी है, ठीक है, यहाँ पे भी पूरा पानी है। सो ऑल द रीजन इज मैक्सिमम ही पानी है, कुछ कुछ हम अलग छोड़ दिए ये लेबीज बेबीज के लिए, ठीक है। लेकिन फरो में क्या होगा, फरो में तुम्हारा सबका सब में पानी नहीं दे रहे। देखो इस सपोज दिस इज द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में कुछ पोर्शन ऑफ एरिया ही तुम पानी दिखाई देगा तुमको, बाकी सब प्लांट्स दिखाई दे रहा है, मतलब जमीन दिखाई दे रहा है, राइट। सो व्हाट इज दैट एरिया, दैट एरिया मतलब जिसमें हम पानी अप्लाई कर रहे हैं, दैट एरिया लाइज बिटवीन 1/5 टू मतलब कितना है ये 20 to 50% एरिया ही वेट रहेगा, बाकी का सूखा रहेगा। सूखा मतलब तुम्हारा प्लांट्स के लिए रहेगा, ठीक है। सो 1/5 to 1/2 ऑफ द एरिया विल बी वेटेड, ओके। सो दिस इज ए फॉरो इरिगेशन। अब आता है कंटूर, देखो ये वाला कंटूर इरिगेशन है। कंटूर कहाँ पे होता है, हिली एरियाज में होता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन, उस हिसाब से हम कैसे इरिगेशन को काम में लाएंगे, उसका जो स्लोप है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे कर दिया, देखो यहाँ पे तुम्हारा फील्ड है, ये जो फील्ड हुआ है उसको हम, उसका जो सराउंडिंग है उसको हम प्रोटेक्टेड कर दिया, किससे, तुम्हारा वही बुन्स या क्या बोलते हैं लेविस, बुन्स या लेविस से हम सराउंडिंग कर दिया, जिससे क्या होगा पानी वहीं पर टिका रहेगा। और वहां पे कुछ हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे मतलब बुन्स को काट दिया या थोड़ा चैनल बना दिया, तो क्या होगा ड्यू टू फ्लो अब यहाँ से तुम्हारा नीचे वाले कंटूर में चला जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ से फिर नीचे वाले कंटूर में चला जाएगा, देखो ये वाला इस यहाँ से कंटूर में चला जाएगा नीचे वाले में। सो देखो दिस ये वाला फील्ड है, अब नीचे से यहाँ पे कुछ अगर कंटूर को मतलब ये जो गैप रहेगा उस गैप से फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा। सो अपने आप ही वो फ्लो होता होता सब एरिया में पहुंच जाएगा। सो दिस इज यूज्ड इन हिली एरियाज, राइट। तो ये सब तुम शायद देखे होंगे। सो प्रैक्टिस इन हिली एरियाज विथ स्लोप्स एंड फॉलिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग कंटूर जिसको बोल रहे हैं। लैंड इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ना, सीरीज ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स कॉल्ड टेरेस, इसको टेरेस बोल रहे हैं, मतलब छत की तरह दिख रहा है, राइट। स्मॉल बून्स कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ ईच टेरेस, मतलब सबके एंड में स्मॉल बून्स कर दिया, सो दैट वाटर एक सर्टेन हाइट तक वहां पर जमेगा, उससे ज्यादा अगर हो गया तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा। जैसे देखो ये सर्टेन हाइट तक यहाँ पे पानी जमेगा, अब इस हाइट में अगर वाटर लेवल पहुंच गया तो वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। तो सो सब में इक्वल डेप्थ तक ये मेंटेन करके रखा है। सो दिस इज योर कंटूर फार्मिंग। नेक्स्ट फार्मिंग इज व्हाट, नेक्स्ट इरिगेशन इज व्हाट, स्प्रिंकलर। ये जो बोले थे देखो स्प्रिंकलर, अब ये सरफेस भी नहीं है सब सरफेस भी नहीं है, राइट। इट्स लाइक एक्टिंग लाइक अ रेनफॉल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले का सुटेबल कहाँ पे होगा, दिस इज सुटेबल फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी, जहाँ पे तुम्हारा
स्लोप नहीं है, प्लेन है या कुछ उबड़ खाबड़ है या मतलब अप्स डाउन सब जगह है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड इट इज यूज ओनली फॉर आइदर हाईली परमिएबल या हाईली इम्परमिएबल. बीच वाले टाइप का सॉइल के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल. आइदर बहुत परमिएबल होना चाहिए या लेस परमिएबल होना चाहिए. ओके तो वहां पे कर सकते हैं. एंड व्हेन वाटर टेबल इज हाई, वाटर टेबल हाई क्यों? क्योंकि हमको पानी कहाँ से लेकर आ रहा है, वो नीचे से करके तुम्हारा सप्लाई दे रहा है, राइट. सो वाटर टेबल जहाँ पे हाई होगा, अगर तुम वहां पे फ्लड डाल दोगे तो क्या होगा, पीछे नीचे पानी जा रहा है, ठीक है, नीचे पानी जाएगा तो वाटर टेबल फिर ऊपर उठ जाएगा. ऊपर उठने से क्या हो जाएगा, वही डैम्पिंग, वाटर लॉग, ये सब होना स्टार्ट करेगा. तो वहां पे अप्लाई करो जहां पे तुम्हारा हाई, ऑलरेडी वाटर टेबल बहुत हाई है. क्योंकि देखो स्प्रिंकलर होने से क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा. हम लोग ये पहले ही पढ़े हैं. जैसे ये स्प्रिंकलर अप्लाई करेंगे वहां पे तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन विल बी लेस. तो इन्फिल्ट्रेशन लेस हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, वो नीचे वाटर, ग्राउंड वाटर में वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा. तो उससे तुम्हारा वाटर टेबल उतना ऊपर नहीं उठेगा. ठीक है. ऑल्सो कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे वाटर इज वेरी स्कार्स, मतलब उस एरिया पे यूज करेंगे जहाँ पे सोर्स बहुत कम है, पानी का सोर्स बहुत कम है, लेकिन हमको इफेक्टिवली अपना प्लांट में वो पानी अप्लाई करना है. तो वहां पे हम लोग ये अप्लाई करेंगे, ये वाला मेथड. ओके क्योंकि फ्लड में क्या है, बहुत सारा क्वांटिटी ऑफ वाटर हमको पूरा डेप्थ तक देना है. यहाँ पे डेप्थ तक का जरूरी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ हम स्प्रिंकलर कर दे रहे हैं तो कुछ कुछ पानी वो अंदर जाएगा, राइट. लेकिन डिसएडवांटेज भी है इसका. एक है कि देखो सीपेज लॉस नहीं होगा, एडवांटेज, ठीक है. लैंड नीड नॉट टू बी लेवल्ड या स्लोप होने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर से तो पानी डाल रहे हैं हम लोग, तो फ्लो करने का भी जरूरत नहीं है. एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इज इजी, मतलब इस पानी के अंदर ही तुम फर्टिलाइजर भी अप्लाई करके एक साथ दे सकते हो. ठीक है. दूसरा है प्रिवेंट सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग. ऑब्वियसली यहाँ से ज्यादा पानी तो अप्लाई नहीं होगा तो वाटर लॉग कैसे होगा, राइट. लेस मैन पावर रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे ज्यादा उतना मैन पावर नहीं लगेगा. जैसे मैनुअल में ये करो वो करो, बंद क्रिएट करो, पानी को इधर से फ्लो करो, तो थोड़ा मैनुअली फार्मर्स के लिए वो हार्ड हो जाएगा. दूसरा है कि डिसएडवांटेज क्या है, इवापोरेशन लॉस ज्यादा होगा. क्यों, मैक्सिमम तुम्हारा सॉइल के नीचे तो नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो पत्ते के ऊपर आ रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्शन लॉस हो जाएगा, मतलब पत्ता में जो है पानी वही इवापोरेट हो जाएगा, राइट. सो मैक्सिमम एरिया ही तुम्हारा इवापोरेशन में चला जा रहा है. सो हाई इवापोरेशन, इनिशियल कॉस्ट, ऑब्वियसली इतना कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कॉस्ट विल बी हाई, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है इसका कंपेयर टू दैट वन ऑल फ्लडिंग टाइप. ओके. नॉट सुटेबल फॉर हेवी इरिगेशन, मतलब जो पैडी जैसा हुआ, राइस जैसा हुआ, पूरा फ्लड टाइप का चाहिए हमको वहां पे पानी, तो उसके लिए तो सुटेबल नहीं है. वैसे टाइप का प्लांट्स के लिए इट्स नॉट सुटेबल, राइट. एनर्जी चाहिए, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा है. टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब अगर मशीन खराब हो गया तो क्या करोगे, तो कुछ मैकेनिक्स तो चाहिए, राइट. एंड इट इज मोस्टली हम लोग इंडिया में ज्यादा यूज नहीं होता है. सो दिस आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके. नाउ दिस इज द ड्रिप इरिगेशन, इसको बोलते हैं सब सरफेस के अंदर में ये आता है तुम्हारा ड्रिप इरिगेशन. देखो कैसे आ रहा है, इट इज डायरेक्टली अप्लाई टू द रूट जोन. ये थोड़ा ऊपर से दिखा रहा है लेकिन कुछ कुछ रूट के अंदर भी घुसा हुआ रहता है. ठीक है. जैसे ये वाला देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये ड्रिप वाइज पानी जा रहा है रूट में. ठीक है. सो लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, मतलब वो उतना तुम इधर उधर फेंक नहीं रहे. यू नीड नॉट टू पोर वाटर एवरीवेयर, जहां जहां पे पानी चाहिए वहीं वहीं पर पानी जाएगा, बस इतना ही है. सो लेस वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट. मतलब तुम जाके एकदम डायरेक्ट, एक देखो, एक गमला लो, दो गमला लो, ठीक है, एक ही टाइप का प्लांट लो, एक ही टाइम में तुम उसको कल्टीवेट करो, तो क्या होगा, एक में तुम फ्लड टाइप का कर दो, पूरा पानी डाल के रख दो, ठीक है, और एक में एक तुम गमला छोटा सा पॉट ले लो, उसमें होल करके पानी डाल के वहां पे रख दो. ठीक है. अब देखो साइड में से कौन ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, ऑब्वियसली जो तुम्हारा ड्रिप टाइप का जहाँ पे यूज करें वो देखना ज्यादा जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि वो अपना मतलब सींच, मतलब जितना जरूरी है पानी वो आस्ते आस्ते ले रहा है. वैरस फ्लड में तुम बहुत ज्यादा दे दिया तब भी वो नहीं बढ़ेगा. ठीक है. सो ड्रिप में तुम्हारा ये वाला एडवांटेज है. इवापोरेशन तो हो ही नहीं रहा है, सब तो पानी इस पाइप से जा रहा है और जहां जहां पे जरूरत है वहीं पर ही जा रहा है, तो क्या होगा, इवापोरेशन तो आएगा ही नहीं, राइट. सो ड्रिप नोजल एमिटर्स, इसका दे दिया स्पेसिफिकेशन की कितना कितना दूर के बाद ये नोजल्स चाहिए, और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन इज 2 to 10 लीटर ये पर आवर में पानी सप्लाई करता रहेगा. ओके. ओके. सो दिस इज द ड्रिप. आई थिंक ड्रिप वाला सबको क्लियर है, राइट. सो एक हो गया सरफेस इरिगेशन, एक सरफेस, ओके, और दूसरा है फरो इरिगेशन. तो सब सरफेस है, मेनली ये वाला आता है ड्रिप टाइप का. ठीक है. एंड ड्रिप एंड ये वाला जो भी स्प्रिंकलर है, दिस इज द मॉडिफाइड इरिगेशन टाइप मेथड
whereas other ये जो इतना भी है ये सब बहुत पुराना जमाना से आता आ रहा है. This is conventional type. Clear everyone? ये ज्यादा टफ नहीं है. अगर तुम लोग थोड़ा अपने से भी पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा. हाँ, ये सब थोड़ा स्पेसिफिकेशन थोड़ा याद रखना है. ओ ऑलरेडी 11:53. ओके ओके देन. अच्छा, प्लीज आफ्टर दिस क्लास यू गो टू गूगल क्लासरूम. दोज हु आर प्रेजेंट एटलीस्ट তোমরা তো দিয়ে দেবে. ওকে, অ্যাটেন্ডেন্স वहां पे যারা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি তারা ভিডিওতে দেখে নেবে. ওকে, থ্যাংক ইউ. তাহলে যদি ডাউট না থাকলে তুমি লিভ. ওকে, থ্যাংক ইউ. Okay. Thank you, ma'am. ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওয়েলকাম. Thank you, ma'am. Okay, welcome.